Hello everyone, and welcome back to this today's next video of POTD streak of day 126. So, if you're new to this channel, please like, share, and subscribe so that we can learn, maintain, and grow our streak together. Right? So, let us move forward to the today's question is about. And before moving forward, um, since our YouTube family has now crossed 1,000 subscribers, so it is a mutual effort of maintaining a consistency throughout this 124 days. So if you have been connected to me from day one, I hope every one of you have must learn something and we will definitely do good in the long run because this streak will never break, right? Like it will never break यार अपना कहीं भी प्लेसमेंट हो जाए कितना भी अच्छा हो जाए तो ये streak नहीं break होगी यार ठीक है so that was one thing I wanted to say to you and that's a video I made for you guys. It's like a Thanksgiving from me to all of you guys. So आप ऐसे देखना यार. And there are some things that I have shared about my journey as well. So I think it will be helpful to you, and as well it will be a good thing for you. तो ठीक है यार. तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को. तो आज के क्वेश्चन का नाम है यूनिक पाथ्स इन अ ग्रिड. तो क्वेश्चन बड़ा स्टैंडर्ड है यार अगर नाम से देखा जाए तो हमने बहुत बड़ी क्वेश्चन कर रखा है तो ठीक है यू आर गिवन अ ग्रिड ऑफ n क्रॉस m साइज कंसिस्टिंग ऑफ वैल्यू 0 एंड 1 एक n क्रॉस m की ग्रिड है जिसमें 0 और 1 का वैल्यूज इनपुट है अ वैल्यू 1 मींस that you can enter the cell and 0 implies that entry to that cell is not allowed okay the value 1 है तो you can pass through it but if it's 0 you cannot pass through it so you start at the upper left corner that is the first cell and they are talking about the one based indexing so they are saying 1 comma 1 and you have to reach to the bottom right corner okay the bottom right this cell right n comma m such that you can only move okay so there are only two direction in which we can move that one is right or down right तो ये क्वेश्चन यार लिटरली हमने बहुत बार कर रखा है चार डायरेक्शन में मूव करना है राइट हमने शायद लास्ट पीयूटीडी की जो क्वेश्चन थी लेट मी go to that question as well let me go to it yeah I think this was the question fill the matrix or I guess it was count cyclic paths I don't know which one of them so based on the dynamic programming right we were moving in every four direction that each and every cell has the capability to move in every four directions यहाँ पे हमारे पास बस दो ही कैपेबिलिटी है या तो हम राइट चले जाएं या तो हम डाउन चले जाएं ठीक है तो आप उस वीडियो को ज़रूर से देखो यार जो भी ये क्वेश्चन था लाइक आई थिंक 122 था आप उसको देखो यार मैंने काफ़ी अच्छे से डीपी समझाया उसमें और मैंने एक सोल्ली एक अलग सी वीडियो भी बनाई है डीपी के ऊपर आप उसे भी देख के समझ सकते हो राइट ठीक है बट क्वेश्चन को शुरू करते हैं यार और हम देखेंगे कि इसको कैसे कैसे कर सकते हैं योर टास्क इज टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ रीचिंग द टारगेट और ये नंबर जो है टोटल नंबर ऑफ वेज जो है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है तो आप मॉड्यूलो 10.9 + 7 से रिटर्न करो राइट ठीक है यार तो ये ऐसी ग्रिड और इसके एक आउटपुट जो है वो 2 दे रखा है राइट वो कैसे कि आप एक ये पाथ ले सकते हो ये एल शेप और दूसरा ये वाला शेप तो ये क्या बोल रहे हैं कि you can consider either you can consider start from this point and you can consider this path or you start from this point again and you consider this path right वही यहाँ पे 1 and 2 ठीक है तो इसका मतलब यही है यार हमें रिकर्जन ही लगाना होगा क्योंकि इटरेशन क्यों नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हम एक पॉइंट पर है ठीक है मेरे पास दो तरीके मूव करने के मैं जब इस पॉइंट पर आऊँगा तो मेरे पास अगेन दो तरीके मूव करने के राइट मैं फिर इस पॉइंट पर आऊँगा तो अगेन दो तरीके हैं इसका मतलब यार ये तो बड़ी कॉम्प्लेक्स अगर हमने इटरेशन लिखा यार तो हम कैसे करेंगे यार हम इस पॉइंट पर अगर हम आगे मूव कर गए तो ये इसको कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना कि हमें एक ऐसा प्रिविलेज होना चाहिए कि हम अगर आगे बढ़ते 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 यहाँ अगर आउट ऑफ बाउंड चले गए तो मैं वापस से अपने प्रीवियस पॉइंट से किसी तरह वापस आ जाऊँ ताकि मैं जो अपना डाउन डायरेक्शन जो मेरा कंप्लीट अभी नहीं हुआ उसको कंप्लीट कर सकूँ राइट तो द रिकर्शन कम्स इन प्ले ठीक है तो आई होप कि बात समझ में आ गई होगी तो ठीक है तो जब भी कोई क्वेश्चन हम एक पॉइंट से दो पॉइंट को मूव करना है फर्दर उसके नेबर भी दो या फिर मल्टी डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली रिकर्शन क्लिक होना चाहिए यार ठीक है तो अपन ऐसे ही करेंगे राइट हम एक डीएफएस फंक्शन बनाएंगे जिसमें कुछ पैरामीटर्स जाएगा आई कॉमा जे जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं आर कॉमा सी राइट और ग्रिड ग्रिड जाएगी राइट और हम क्या कर रहे हैं यार हम आई कॉमा जे पर है राइट और हम क्या राइट मूव कर सकते हैं और डाउन मूव कर सकते हैं तो अगर हमने राइट मूव किया आई कॉमा जे से तो इट वुड बी व्हाट मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ it would be I the same row but the column will change
एंड सिंस वी आर चेंजिंग द कॉलम, तो अगर ये आउट ऑफ बाउंड ना चलाए तो हमें चेक करना होगा कि इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू सी। सिमिलरली मैं डाउन अगर जाऊंगा तो मेरा रो बदल जाएगा i+1, बट द कॉलम रिमेन सेम। एंड इफ यू आर चेंजिंग समथिंग इन आई, दैट इज इंक्रीमेंटिंग इट, मेरे को चेक करना पड़ेगा आई शुड लेस देन इक्वल्स टू द गिवन आर, ताकि आउट ऑफ बाउंड ना चला जाए, राइट। तो मैंने कोऑर्डिनेट्स भी बता दिए आपको, और चेकिंग कंडीशन भी क्या हो गया, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं डीएफएस कॉल करूंगा सबसे पहले राइट मूव करने की एंड देन डाउन मूव करने की, राइट। तो चलो एक छोटा सा सूडो कोड लिख भी लेते हैं यार। तो बेस केसेस क्या होंगे यार, बेस केसेस क्या होंगे कि जब मैं यहाँ पहुंच जाऊं तो आई एम द विनर, राइट। तो ठीक है, और उससे भी पहले आई एम मूविंग इन सम डायरेक्शंस, राइट। सो आई विल चेक फर्स्ट कंडीशन, आई विल चेक कि आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए, वो हमारा पहला बेस केस हो गया, राइट। आई कैन नॉट मूव थ्रू ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स हमारा सेकंड बेस केस हो जाएगा। और मैं इस पॉइंट पर पहुंच गया, then I am the winner. So I will say one base case more, that the winning point, right? And at last, I just have to do DFS in both the direction, right? And since I want the total number of ways, right? जो मैं right direction से move किया और मैं left direction से move किया, तो उसे मैं total number of ways चाहिए, right? So what I will do, plus sign here, right? तो मैं एक छोटा सूडो कोड लिखता हूँ यार आपके साथ, and then we will see कि ये कोड actually run कैसे करेगा, है ना। तो आउट ऑफ बाउंड्स के लिए यार क्या लिख सकते हैं यार, आउट ऑफ बाउंड्स के लिए अगर आई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर हो जाए, या फिर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी हो जाए, जे पॉइंटर, राइट। या फिर आई जो है वो लेस देन जीरो हो जाए, या फिर जे जो है वो लेस देन जीरो हो जाए, राइट। तो इस केस में हमें क्या करना है, रिकर्जन को स्टॉप कर देना है, एंड व्हाट विल रिटर्न, दैट रिटर्न जीरो। नन ऑफ द पॉसिबिलिटी नहीं है यार यहाँ से आंसर निकालने की, राइट। सिमिलरली ऑब्स्टेकल्स में चेक कर लेंगे, ग्रिड ऑफ आई जे जो है वो अगर इक्वल्स टू जीरो है, देन अगेन हमें रिकर्जन को स्टॉप करना है, एंड वी कैन नॉट गेट एनी आंसर दैट इज जीरो। विनिंग पॉइंट क्या होगा यार कि आई जो है वो इक्वल्स टू क्या हो जाए, आर, राइट। r-1 लास्ट लास्ट पॉइंटर पहुंच जाए, साथ ही साथ जे जो है वो भी लास्ट पॉइंटर को, लास्ट सेल को पॉइंट करना चाहिए, दैट इज j equals to c-1. In that case, we have to stop the recursion, but we are getting an answer here. So I will say return 1. Similarly, I will call DFS for both the directions, right? तो मैं पहले इस डायरेक्शन के लिए चेक कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, राइट। तो मैं क्या लिखूंगा, i, j+1, the row and column remain same and the grid remains same, right? Similarly, मैं डाउन तरफ मूव करूंगा तो the changes were in i, तो i+1, j, r and c remain same and the grid remains same, right? ठीक है, तो ये कोड कैसे रन करेगी यार। तो मैं पहले कहाँ, पहले मैं राइट के लिए कॉल कर रहा हूँ, राइट। तो मैं इस पॉइंटर पर रहूँगा यार, लेट मी यूज दिस अनदर कलर। मैं इस पॉइंटर पर रहूँगा यार, आई विल मूव राइट बिकॉज आई हैव द प्रिविलेज टू मूव राइट, बिकॉज ये आउट ऑफ बाउंड नहीं है। देन अगेन आई विल मूव राइट एंड आई कैन सी देयर इज नो ऑब्स्टेकल एज वेल, राइट। Again I will move right and I will say that, oh, this is out of bounds, so I cannot move right again, right. So what it will do, it will come to its parent call and it will see that, okay, right was not possible, can we move down? So it will say yes, you are not out of bound condition, neither uh, the down cell is not an obstacle for you, वो zero नहीं है, so you can move down. So it will come here, then it will see, can I move right again? So it cannot move right again, right, it is out of bound. It will again uh, recur back to its parent call, and they will move right, and it will hit the base case that, okay, I am at my winning position, I have reached my destination, right. So what it will say, that return 1 from here, right. ठीक है यार, तो किस किस के पेरेंट कॉल कंप्लीट हो गए थे, रिटर्न 1, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये अपने वापस से इस पेरेंट कॉल पे जाएगा, इस 1 पर। मैं अब यहाँ से कलर चेंज करता हूँ, इस रिटर्न 1, और ये क्या किया कि हाँ, तो यहाँ तो ये अब अपने वापस से पेरेंट कॉल पे जाएगा, एंड इट विल सी दैट राइट और डाउन तो ऑलरेडी कवर्ड हो चुके हैं इसके, है ना, ऑलरेडी कवर्ड हो चुके हैं। देन व्हाट विल डू, इट विल अगेन गो इट्स पेरेंट कॉल, राइट, एंड देन व्हाट इट विल डू कि इट विल अगेन गो इट्स द नेक्स्ट पेरेंट कॉल, है ना, वो यहाँ आ जाएगा, एंड देन अगेन इट विल सी दैट मैंने राइट तो कवर कर लिया था, मैंने डाउन नहीं कवर किया था, तो मैं डाउन जा सकता हूँ क्या, ये नहीं जा सकता, बिकॉज देयर इज एन ऑब्स्टेकल, राइट। सो इट विल अगेन कम टू इट्स पेरेंट कॉल एंड इट विल सी राइट वाज ऑलरेडी कवर्ड, सो इट विल गो डाउन, इट विल गो डाउन, एंड डाउन जाने के बाद the first recursive call for each and every cell is about the right, so I can I go right, so there is an obstacle, I cannot go right, right। तो मैं फिर नीचे चले जाऊंगा यार, नीचे से अब नया सेल में विजिट किया, तो इसका मतलब है मैं राइट जा सकता हूँ, मैं चेक करूंगा, राइट। तो मैं जा सकता हूँ, इट इज़ नॉट आउट ऑफ बाउंड, और नाइदर इट इज़ पॉइंटिंग टू जीरो, राइट। सो फिर मैं यहाँ से कहता हूँ कि मैं और राइट जा सकता हूँ, ये बोलेगा यस यू कैन गो मोर राइट, और दैट्स द विनिंग पॉइंट, राइट। तो यहाँ से एक बार और वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, दैट इज़ 1, राइट। तो जब ये चीज़ राइट में गई थी, तो यहाँ से वैल्यू रिटर्न हुई थी 1, राइट। डाउन के लिए भी देख लेते हैं, डाउन के लिए भी रिटर्न 1 हो रहा है, तो ये अपने पेरेंट कॉल पे जाएगा 1 पे, एंड इट विल सी दैट आई कैन नॉट गो डाउन बिकॉज इट इज आउट ऑफ बाउंड, सो इट विल अगेन रिटर्न टू इट्स पेरेंट,
This one cannot also go down, it will again return to its parent. This cell has already went right and down, so it will again return to parent and it will return 1 from here. And we are doing the plus thing, right? So when I was this point, it returned 1 from the right hand side and 1 from the downside. So I have to do the addition. I will say that the answer is 2, right? I hope you were able to get the recursive calls. That is a very like important thing, right? So this is the pseudocode here, and this exactly you have to write in the editor to make your logic run, right? तो ठीक है यार, आप अपने आप को 5 मिनट का समय दो, इस सूडो कोड का हेल्प लो और कोड लिखने की कोशिश करो, बिकॉज मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ. सो आई विल नॉट डू द लाइव कोड ऑफ दिस सूडो कोड बिकॉज द कोड विल बी एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस कोड, राइट? तो मैं आपको डायरेक्ट कोड लिख के और आपको रन करके शो करता हूँ, ठीक है? देन वी विल थिंक ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच. Okay, so I have written the code, and it's already been 4:22 a.m. in the morning. And if you're liking my content, please like, share, and subscribe. तो अगर आपको हेल्प मिल रहा है तो सब्सक्राइब कर दो यार, उससे क्या ही जाता है. तो आई विल आल्सो गेट मोटिवेटेड टू कीप टीचिंग ऑन दिस चैनल एंड विद द फुल एनर्जी एंड पेशेंट. ठीक है, तो देखते हैं. तो मैंने कोड एग्जैक्ट वही सूडो कोड मैंने यहाँ लिख दिया, and I'm not doing nothing in the main function, that just I'm returning, I'm calling the function, I'm returning it because the return type is integer and we have made the dfs as int as well. ठीक है, तो इसे कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं that we have are we on the same page with the logic as well as the intuition. So we are on the same page, yeah, so that's great. But what would be the time complexity of this code? So what I'm doing for each and every cell, I have 2 calls. I have privilege to make 2 calls for each and every. Do not mind my handwriting, just follow the logic. I have 2 calls, right? So how many cells are there? M cross n. So what is the time complexity then? 2 power m cross n, right? And m, if I'm not wrong, it is pointing to 10 power 3, right? So 2 power 10 power 6 is definitely greater than 10 power 8, right? So even if our logic is right, this solution will give us the TLE. So let us submit the code now and let us verify this TLE thing. And if you're not understanding this 10 per 8 logic, then I have made a video on time complexity. You must watch that video. It's just a matter of 5 to 6 minutes, but you will definitely getting a very good learning from that video. So let's hit the submit button and we'll wait for TLE to come. So why explain from the brute force here? Because यही एक तरीका होता है यार समझने का कि हाउ डू वी अप्रोच अ प्रॉब्लम, राइट? तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रादर दैन कि आप बस कोड सबमिट कर दो, और यही इंटरव्यू में चेक भी होता है, ठीक है? तो that is the main motive. I started with channel starting from the brute force and then we'll optimize it further till the no further optimization is possible. So as you can see TLE has came. तो अच्छी बात है यार, हम इसी का वेट कर रहे थे. तो अब रिकर्जन में मैं अपने बार बार अपने वीडियोस में बोलता हूँ यार, रिकर्जन को ऑप्टिमाइज, रिकर्जन में ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी यार? सबसे पहले ये देख ले, राइट? बिकॉज हम क्या कर रहे थे, हम रिपीटिंग सब प्रॉब्लम्स के लिए वापस से हम अपना सीपी यूटिलाइजेशन कर रहे थे. वी आर ऑलवेज प्रोसेसिंग इट अगेन. तो ये प्रॉब्लम है यार रिकर्जन में, राइट? इसको ऑप्टिमाइज करने का तरीका होता है डीपी, जो कहता है कि डू नॉट रिपीट सब प्रॉब्लम्स, लाइक डू नॉट प्रोसेस रिपीटिंग सब प्रॉब्लम्स. दैट्स द इंट्यूशन ऑफ डीपी, राइट? तो इसके 2 तरीके होते हैं यार, एक मेमोराइजेशन होता है और एक टैबुलेशन होता है, ठीक है? मेमोराइजेशन का कहना होता है कि व्हेनेवर ये जो आप रिकर्जन किए, जो आपने पहले स्टेप में किया, व्हेनेवर यू आर विजिटिंग एंड इन दिस केस व्हेनेवर यू आर विजिटिंग एन सेल, और जब भी आपने उसको प्रोसेस किया, मैंने सेल विजिट किया, मैंने उसको प्रोसेस किया, राइट? So whenever you process it, then store the value, so that in the next iteration, if that particular sub problem comes again, then use that stored value there, right? अब वैल्यू जब स्टोर करना है तो उसके लिए हमें कुछ बनाना पड़ेगा यार. तो हमारे केस में 2D एरे है, राइट? 2D एरे है, तो उन हर एक सेल के वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हमें भी एक 2D एरे बनाना पड़ेगा. एंड लेट्स नेम दैट वेरिएबल एज पाथ, राइट? ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना यार. whenever we are making a recursive call, we just need to store it in a data type. In this case it was a 2D array, so we made a 2D array again named as path, and then we will store it. So the exact same code will be there, only the modification that you need to do is that you need to make this thing int
path. I'll make a 2D array and I have to give it the static reference, otherwise it will not work. And why I'm making it a global scope, because this path 2D array will be accessed by my recursive code, right? तो उसे global बनाना पड़ेगा, else I have to pass that path 2D array every time in my function. मैं उसे यहाँ बना सकता था मेन के अंदर और मैं यहाँ पे कॉमा डाल के उसे पास कर सकता यहाँ पे कॉमा डाल के, बट इंस्टेड की वो 2-3 बार लिखना पड़ता, तो मैंने एक बार डायरेक्ट उसको ग्लोबल बना दिया, ठीक है। दैट्स द मेन इंट्यूशन। और हम पहले क्या करेंगे कि पहले पहले हम सारे इसके सेल्स को हम -1 से मार्क कर देंगे। arrays डॉट फिल आई विल से लेट्स से x -1। तो 2D एरे यार, तो हम इसे ऐसे डायरेक्ट नहीं मार्क कर सकते हैं, तो हमें इसमें इटरेट करना पड़ेगा। तो लेट्स से फॉर इंट x, एक एरे बना के हम इसमें इटरेट कर जाते हैं पाथ। हाँ, अब ईच एंड एवरी सेल इज मार्क्ड। हम क्यों मार्क कर रहे हैं यार? बिकॉज हमें अगर हमें चेक करना होगा ना कि वेन एवर दैट सब प्रॉब्लम कम्स अगेन टू मी, when I stored for a particular sub problem, right? वो सब प्रॉब्लम अगर मेरे वापस से आता है, whenever we process a new cell, हम चेक करेंगे यार कि वो उस सेल के लिए ऑलरेडी कोई आंसर स्टोर्ड है या नहीं। तो वो आंसर क्या होना चाहिए यार? वो हमें कोई ऐसा नंबर लेना होगा, ऐसा नंबर लेट्स से -1, जो कभी भी पॉसिबल आंसर नहीं हो सकता फॉर एनी पर्टिकुलर सेल। हम यहाँ पाथ कर रहे हैं, हमेशा एडिशन कर रहे हैं, तो दैट विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन 0, इसलिए हमें एक माइनस इंटीजर यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अगर आपको ये बातें नहीं समझ आ रही, इन केस जो एकदम एकदम कंप्लीट बिगिनर है और वो मेरे चैनल को फॉलो कर रहा है और मे बी नहीं समझ पा रहा हो कि नहीं आपने कैसे यार रिकर्जन से आप डीपी क्या होता है यार, मेमोराइजेशन कहाँ से आ गया, मैं उतना डिटेल में नहीं जा सकता है इस वीडियो पे। मैं जितना हो सकता है मैं उतना डिटेल पे जा रहा हूँ, बट और दैट इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड माई डीपी प्लेलिस्ट एज वेल। उसका फर्स्ट वीडियो यही है यार कि डीपी क्यों है, डीपी के मेमोराइजेशन क्या होती है, टैबुलेशन क्या होता है, क्यों होता है, एवरीथिंग व्हाट हाउ एंड व्हाई। आप उस वीडियो को देखो और वापस इस पे आना, आपकी स्ट्रिक भी मेंटेन हो जाएगी और आप बहुत कुछ सीख भी जाओगे, ठीक है। बट आई होप कि जो भी मेरे को फॉलो कर रहे हैं उन्हें ये बातें समझ में आ रही है, क्योंकि बहुत बार हमने डीपी को डिस्कस किया, राइट? लाइक counting, maintaining, like it cannot be count on fingers, right? So that much time we have discussed the DP on each and every question. ठीक है, तो हमने RS से fill कर दिया and at last we just have to return the DFS. But whenever we are doing anything in our base cases, I have to store it, right? तो ठीक है यार, स्टोर करना शुरू करते हैं। तो ये तो बेस केस है यार, ये तो बस इंडेक्सेस चेक कर रहा है, तो यहाँ कुछ स्टोर नहीं कर सकते। ये भी बस चेक कर रहा है कि ग्रिड ऑफ आई जी इक्वल टू 0 है यानी 0 है 1, तो उसमें कुछ स्टोर नहीं किया जा सकता है। दिस इज अगेन अ बेस केस, राइट? अब मैं इसके बाद जो भी लाइन हो रही है वो प्रोसेस कर रहा है नोड को, राइट? सो आई विल राइट हियर, भाई प्रोसेस करने से पहले तुम चेक कर लो कि इस पर्टिकुलर आई और जे इंडेक्स के लिए आंसर अवेलेबल है या नहीं, राइट? अगर आंसर अवेलेबल है तो उस आंसर को रिटर्न करा दो, राइट? ठीक है, ये तो हो गया कि हमने चेक कर लिया। बट हम जब पहली बार प्रोसेस करेंगे, जो कि इस रिटर्न स्टेटमेंट से हो रहा है 58 का, तो वेन एवर वी आर प्रोसेसिंग इट फर्स्ट टाइम आई नीड टू स्टोर इट ना। तो आई विल जस्ट से दैट पाथ ऑफ आई एंड जे इज इक्वल्स टू दिस थिंग, दैट्स इट। तो वो ऑटोमेटिकली स्टोर करते चला जाएगा, राइट? एंड ऑल्सो हमें एक चीज़ और हैंडल करनी पड़ेगी यार कि ये जो इंट मॉड्यूलो है, राइट, तो हमें उसके लिए एक बनाना पड़ेगा। So I will say int mod is nothing but 10 power 8 plus 7, right? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and then 7, right? यहाँ पे एसोसिएटिव रूल लगा देंगे यार, a plus b अगर इक्वल्स टू c है, then a मॉड्यूलो b plus b मॉड्यूलो सॉरी, हाँ, एसोसिएटिव रूल क्या होती है यार, वो यहाँ पे लगा देंगे यार। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है if a plus b is equals to c, then a मॉड्यूलो b plus b मॉड्यूलो m एंड टोटल का मॉडुलो भी हम करो तो वो सी ही आएगा, ठीक है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। ये भी सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए भी रूल्स होते हैं इसके। तो अभी हम एडिशन को देख रहे हैं, तो सिर्फ उसको देखेंगे, राइट? ये भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ यार, ठीक है। तो टोटल का मॉड कर दिया हमने, और टोटल का मॉड कर दिया, फिर इंडिविजुअल का मॉड कर देंगे, राइट? यहाँ पे भी इंडिविजुअल का मॉड कर देंगे, और यहाँ से आई गेस टोटल का मॉड हो जाएगा, राइट, हो जाएगा। ठीक है यार, तो लेट्स hit the compile and run button and then we will see for ourselves. So I got a error कि जो mod है that cannot be referenced from a static context। सही बात है यार,
कि हम स्टैटिक फंक्शन बनाए हैं तो वो स्टैटिक वेरिएबल्स और अगले स्टैटिक फंक्शंस को ही एक्सेस कर सकता है, राइट। तो मैंने यहाँ पे स्टैटिक इंट मॉड लिख दिया एंड लेट्स कंपाइल एंड रन अगेन। ऑल्सो बिफोर कंपाइलिंग मेरे को एक और प्रॉब्लम दिख गई यार, मैंने ये पाथ यहाँ पे डिक्लेयर तो कर दिया बट ये इनिशियलाइज नहीं किया था, राइट। तो हमने उसका अंदर इनिशियलाइज कर लेंगे एंड देन अब हम एक बार लास्ट कंपाइल एंड रन करते हैं यार, आपको एरर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ग्रेट। तो अब इसे सबमिट करेंगे तो ये सबमिट होगा या नहीं होगा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी यार, वीडियो को पॉज करो एक बार सोचो, ठीक है। तो अब मैं बता देता हूँ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं यार, आप इस लाइन को वापस से पढ़ो, रिपीटिंग सब प्रॉब्लम्स को सिर्फ एक बार प्रोसेस करना है और उसे स्टोर कर देना है, राइट। तो हम किसको प्रोसेस कर रहे हैं, एवरी सेल को प्रोसेस कर रहे हैं, है ना, ईच एंड एवरी सेल। कितने सेल्स हैं यहाँ पे, n क्रॉस m, राइट। और हम हर सेल के लिए वैल्यू को स्टोर करते जा रहे हैं एक पाथ 2D एरे में। तो वेन एवर द रिपीटिंग सब प्रॉब्लम कम्स तो हम उसे O ऑफ 1 में एक्सेस कर लेंगे उस 2D एरे से। तो दैट मीन्स कि जो 2 2 पावर n क्रॉस m जो है वो अब बदल चुका है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n क्रॉस m। वी आर जस्ट प्रोसेसिंग इट एंड ईच एंड एवरी सेल जस्ट वंस। For rest of the cases, if that sub problems is repeating, then we are accessing यूजिंग O ऑफ 1, क्योंकि एक्सेस करने में सिर्फ O 1 टाइम लगता है, ठीक है। तो अभी की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो n क्रॉस m हो चुकी है एंड इफ यू डू 10 पावर 3 into 10 पावर 3 दैट इज 10 पावर 6, राइट, which is which is less than 10 पावर 8, राइट और नॉट। तो इसका मतलब है यार कि इफ आवर कोड इज राइट which is, देन इसका मतलब कि ये TLE नहीं देगा, राइट। तो तुरंत से अब इसको एक बार सबमिट कर लेते हैं। तो दिस विल बी आवर सेकंड ऑप्टिमाइजेशन और या सेकंड ऑप्टिमाइजेशन। अब डीपी को भी क्या बोलते हैं, डीपी को भी अचीव करने के दो तरीके होते हैं, राइट। वन इज वाया दिस मेमोराइजेशन एंड अदर इज वाया द टैबुलेशन, राइट। तो देखो यार, मेरा मानना है यार कि अगर किसी एक प्रॉब्लम को स्पेसिफिक, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रोग्रामिंग थिंग, कि अगर किसी एक प्रॉब्लम को 2 या 3 तरीके से नहीं किया, राइट, जितने भी पॉसिबल तरीके अगर उनसे नहीं किया तो फिर मतलब उस करने कुछ क्वेश्चन करने का कोई मज़ा नहीं आया, ठीक है। वो ओए में आप एक तरीका, जो ऑनलाइन असेसमेंट एक तरीके से करके सबमिट कर दो, दैट इज़ ओके। बट आप जो आप सीख रहे हो, जो कि मैं सीख रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, राइट, तो मेरे को सारे प्रोसेस बताने पड़ेंगे यार आपको, ठीक है, तभी आपको ना वो स्किल जाके डेवलप होगी, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं आ रहा है चैनल रन करने का ठीक है। तो ठीक है यार, तो देखते हैं। तो मेमोराइजेशन कर लिया, अब टैबुलेशन कर लेते हैं। मेमोराइजेशन वाज नथिंग बट इट इज आल्सो नोन एज टॉप डाउन, राइट। टॉप डाउन का मतलब होता है यार कि हम एन से शुरू करते हैं, 0 तक जाते हैं। टैबुलेशन में क्या होता है यार कि दिस इज बॉटम अप, दिस इज आल्सो नोन एज बॉटम अप, राइट। ये क्या होता है, हम नीचे शुरू करते हैं, दैट इज 0 से शुरू करते हैं और बाकी सारे मैट्रिक्स या फिर ऊपर तक जाते हैं, राइट। तो ठीक है यार, तो टैबुलेशन की इंट्यूशन क्या होगी, मैं आपको इंट्यूशन देता हूँ। हम्म, तो टैबुलेशन की इंट्यूशन क्या होगी यार, ये मैं आपको बताता हूँ। तो हमारे पास मैट्रिक्स था 1 1 1 1 1 और ये 0 और ये 1 1 एंड 1, राइट। ठीक है, ठीक है। और बिफोर स्टार्टिंग द टैबुलेशन थिंग यार, तो जो सी प्लस प्लस यूजर्स हैं यार, तो अगर वो रिकर्जन और उन्होंने ये मेमोराइजेशन का कोड ट्राई किया है, तो वो ये रहा यार, जो मैंने इनिशिएटिव ली थी यार लास्ट टाइम कि अपन सी प्लस का कोड भी डिस्कस करेंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई भी लाइक मेरी वीडियोस को देख के बट फिर कोड ना कर पाए, राइट। तो ये हो गया यार सी प्लस का कोड रिकर्सिव के लिए। मेमोराइजेशन कोड अगर आपने नहीं किया तो ज़रूर से ट्राई करो। और ये हो जाएगा, मैंने जावा वाला डिस्कस तो ऑलरेडी कर लिया लाइव कोडिंग में, और ये आपका रिकर्सिव कोड हो जाएगा, सॉरी मेमोराइजेशन कोड, मेमोराइजेशन कोड हो जाएगा सी प्लस प्लस के लिए, ठीक है। चलो वापस चलते हैं पेंट पे, टैबुलेशन डिस्कस करते हैं। तो ठीक है, इंट्यूशन इसकी ये होती है कि देखो, जब भी हम एक पॉइंट से 2 3 4 पॉइंट पे मूव कर रहे हैं, राइट, तो हमें क्या करना है, हम 0 से n तक इसमें जाते हैं, राइट। दिस इज नोन एज बॉटम बॉटम अप्रोच, राइट। तो आप ऐसा सोचो, ठीक है, कि हम कहाँ पहुंचे, लेट्स से आई कॉमा जे तक पहुंचे, ठीक है। बट कौन कौन से वेज से हम इस, ये हमारा मान लो कि विनिंग पॉइंट है, ठीक है, विनिंग पॉइंट है, लाइक डेस्टिनेशन है, राइट। सो व्हाट आर द वेज। एक तो वे था कि मैं राइट चला जाऊं, राइट। तो अगर मैं इस आई कॉमा जे के रिस्पेक्टिव में एक ऐसा पॉइंट निकालूं जो कि इस पॉइंटर पे हो, और उस पॉइंटर से हम आगे राइट जाए तो आई कॉमा जे आता है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि ये आई कॉमा जे -1 का पॉइंटर होगा, है ना। सिमिलरली मैं आई कॉमा जे पे पहुंच चुका हूँ डेस्टिनेशन पे। दूसरा वे क्या था कि मैं डाउन चला जाऊँ, राइट। तो आई कॉमा जे के परस्पेक्टिव से ये पॉइंट क्या हो जाएगा कि सेम, नॉट डिफरेंट रो, दैट इज i-1 एंड सेम कॉलम, ऐसा कह सकते हैं। तो इसका मतलब है यार कि देर आर ओनली टू वेज टू रीच आई कॉमा जे, राइट। और अगर मैं किसी तरह निकाल लूं कि यहाँ पहुंचने के कितने तरीके हैं,
तो मैं बता सकता हूँ यार कि इन अगर इससे x आया और इससे y आया तो मैं इसको प्लस करके बोल दूंगा कि x प्लस वाई जो है वो i कमा j तक पहुंचने के तरीके हैं, राइट। यही इंट्यूशन हमें इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो हम एक 2D एरे बनाएंगे, ठीक है, एक 2D एरे बनाएंगे और हम सबसे पहले देखेंगे यार कि ये पहला पॉइंटर हमें यहाँ से मूव करना है, राइट। तो अगर ये ऑब्स्टेकल हुआ, अगर ये जीरो हुआ, तब तो डायरेक्ट आंसर ही जीरो हो जाएगा, राइट। हम जहाँ से शुरू कर रहे हैं वही खुद ही ऑब्स्टेकल है यार, तो उसकी कुछ नहीं कर सकते, राइट। अगर ये वन है तो सबसे पहले इसे वन अपडेट कर दो, ठीक है, ठीक है। अब मैं राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, राइट। तो मैं आई कॉमा जे जो है पहुंचने के लिए अगर राइट डायरेक्शन में मूव किया तो मेरे को जस्ट पीछे वाले पॉइंट से आंसर निकालना होगा, राइट। सेम रो बट जस्ट पीछे वाला कॉलम, राइट। तो अगर मेरे को यहाँ पहुंचना है तो इसके जस्ट पीछे जो पॉइंट है ना, मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। तो मैं यही बोलूंगा यार कि लेट्स से दिस इज पाथ एरे, राइट। और मैं लेट्स से ये हमारा आर है और ये हमारा सी है, राइट। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पहुंचने के तरीके भी वन है क्योंकि ये जो पिछला नंबर था वो वन था, राइट। क्योंकि आई कैन मूव ओनली इन राइट डायरेक्शन। एंड दूसरी एक और कंडीशन होगी कि ये जीरो नहीं होना चाहिए, ग्रिड में जीरो नहीं होना चाहिए, पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, राइट। सिमिलरली आई कैन से कि मैं इस पॉइंट पर वन था तो आगे जाने का भी पॉसिबिलिटी वन ही होगा, है ना। इसी तरह मैं कॉलम्स भर लूंगा यार, ये वन है जैसे मैं यहाँ दिखाया था आपको कि आई कॉमा जे लेट से रीच कर रहा हूँ एंड डाउन मूव कर रहा हूँ तो जस्ट ऊपर वाले वैल्यू को यूज कर लूंगा मैं, राइट। ऊपर वैल्यू क्या है, वन है, तो मैं यहाँ भी वन लिख दूंगा। फिर इस सेल के लिए ऊपर वैल्यू क्या है, वन, तो आई विल से वन, राइट। बट अब मैं जब यहाँ से फिलिंग शुरू करूंगा यार, ठीक है, यहाँ से फिलिंग शुरू करूंगा और साथ ही साथ मैं इसका कोड भी लिख देता हूँ यार, सूडो कोड, ठीक है। तो ये जो हमने फर्स्ट, मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट कॉलम जो हमने फिल किया, मैं उसके लिए क्या इटरेशन करूंगा कि फॉर आई इक्वल्स टू जीरो टू आई लेस देन आर आई प्लस प्लस, राइट। आई विल से दैट पाथ ऑफ आई इक्वल्स टू जीरो, नहीं जीरो का वैल्यू तो बढ़ा हुआ है, राइट, आई इक्वल्स टू वन से दैट पाथ ऑफ आई and 0 is nothing but path of I minus 1 comma 0, राइट। यही किया था मैंने, डाउन के लिए आई पॉइंटर में माइनस किया था, लाइक फर्स्ट पॉइंटर में। सिमिलरली मैं कॉलम के लिए भी एक लिख देता हूँ यार सूडो कोड, मैं बाद में फिर नहीं समझाऊंगा इसीलिए। तो फॉर मैं इसे क्या लिखूंगा, फॉर आई इक्वल्स टू जीरो आई लेस देन सी आई प्लस प्लस आई विल से दैट पाथ ऑफ, हमारा रो कांस्टेंट है, फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं तो दैट विल बी जीरो। कॉलम में इटरेट हम आइट पॉइंटर से कर लेंगे, तो इट विल बी, मैं यहाँ पर जब हूँ तो मैं पीछे वाले से आंसर निकाल रहा हूँ, राइट। सो व्हाट कैन आई से दैट पाथ ऑफ जीरो कॉमा आई इज नथिंग बट, और मैं वन से शुरू करूँगा, राइट, इज नथिंग बट जीरो कॉमा आई माइनस वन। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो यार, जब मैं राइट मूव किया था तो मैंने जो सेकंड सेकंड जो इंडेक्स है, राइट, जीएथ इंडेक्स में माइनस किया था, राइट, यहाँ वही माइनस करूँगा। होप आपको ये दो फॉर लूप समझ में आ गई, नहीं समझ आई तो वीडियो को पॉज करो, एक बार फिर से पीछे जाओ, अगर ये नहीं समझ आया तो फिर आगे के फीलिंग्स भी नहीं समझ आएगी, राइट। आप एक बार वीडियो को बैक करो, नहीं समझ आए तो, और नहीं तो मेरे को लग रहा है आपने क्लिक कर गया हो, क्योंकि रिकर्जन ही किया, मेमोराइजेशन किया, तो ये तो फिर लाइक डैम इजी, ठीक है। तो फिर से सेम इंट्यूशन कि मैं आई कॉमा जे पर हूँ, मैं राइट जा सकता हूँ, अगर जो जो राइट जो इसका राइट जाने का जो फैसिलिटी था वहाँ से एक्स आ रहा है और डाउन जाने का जो फैसिलिटी था वहाँ से वाई आ रहा है, तो उनको सम कर दो, राइट। तो मैं वही करूँगा और सिमिलरली वहाँ पे उस ग्रिड में वैल्यू मूव करने का पॉसिबिलिटी होना चाहिए, बट यहाँ जीरो है, राइट। तो आई कैन नॉट से एनीथिंग, आई विल जस्ट से कि यहाँ मूव ही नहीं होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे अपडेट करूँगा जीरो, राइट। सिमिलरली मेरे को यहाँ जाना है तो आई हैव टू यूज दिस द द राइट प्रिविलेज एंड द डाउन प्रिविलेज, राइट। तो मैं इसको अगर सम करूँ क्योंकि मेरे को टोटल नंबर वेस्ट चाहिए, तो इट विल बी जीरो प्लस वन, दैट विल बी पॉइंटिंग टू वन, राइट। सिमिलरली मैं यहाँ पे राइट और डाउन का प्रिविलेज यूज करूँ तो वन प्लस जीरो वन हो जाएगा। सिमिलरली मैं राइट और डाउन का प्रिविलेज यूज करूँ तो इट विल बी वन प्लस वन टू, और लास्टली मेरे को ये रिटर्न कर देना है, राइट, है कि नहीं, क्योंकि ये मेरी डेस्टिनेशन थी और ये मेरे को बता देगा टोटल नंबर ऑफ वेज, यार कितना टोटल नंबर ऑफ वेज है यहाँ से यहाँ पहुँचने में, तो दैट इज टू, ठीक है। तो इसका कोड कैसे लिखेंगे यार, इस पर्टिकुलर थिंग के लिए ये फिलिंग हमें करनी है, राइट। तो आई विल से दैट फॉर आई इक्वल्स टू वन आई लेस देन आर आई प्लस प्लस, सेकेंड लूप क्या चलेगी कि फॉर जे इक्वल्स टू वन जे, थोड़ी सी हैंडराइटिंग बिगड़ गई मेरी, जे लेस देन सी जे प्लस प्लस, राइट। व्हाट आई विल डू कि मैं जब इस पॉइंट पे था तो मैं राइट और डाउन का प्रिविलेज यूज कर रहा था, राइट। सो आई विल जस्ट से दैट पाथ ऑफ आई एंड जे इज नथिंग बट पाथ ऑफ आई
अब मैं अगर राइट का प्रिविलेज इस्तेमाल करता हूँ तो इट विल बी आई जे माइनस वन, और अगर मैं डाउन का प्रिविलेज इस्तेमाल करूँगा तो इट विल बी पाथ ऑफ आई माइनस वन एंड जे, राइट। और सिमिलरली एसोसिएटिव रूल लगा देंगे यार, परसेंट एम लिख देंगे यहाँ पे, परसेंट एम लिख देंगे और होल का परसेंट एम लिख देंगे, राइट। तो ये रहा यार अपना सूडो कोड, यही एग्जैक्टली अपना कोड भी है, राइट। तो आप एक बार कोशिश करो खुद से कोड करने का और फिर मेरे एडिटर पे वापस आना। तो मैं वीडियो पॉज करता हूँ यार, इट्स ऑलरेडी 30 मिनट्स, बट ठीक है यार, मैं वीडियो इसलिए लंबी बनाता हूँ यार कि मैं कोई भी अप्रोच छोड़ना नहीं चाहता हूँ, राइट। बिकॉज दैट्स द वे कि आप एक अच्छे ट्रू प्रॉब्लम सॉल्वर बनोगे रिगार्डिंग डीएसए। ठीक है। तो इफ़ यू आर स्टिल विथ मी टिल दिस एंड, तो एंड इफ़ यू आर लाइकिंग द वे ऑफ माई टीचिंग, जो कि मैं देख रहा हूँ यार, तभी हमारे फैमिली हमारी ग्रो कर रही है, then please like and subscribe for the new users, and we'll definitely do great in the long run, right? We are already doing it, but we will definitely do wonders in the long run. तो ठीक है, मैं कोड कोड करता हूँ, अभी अपने आप को 5 मिनट का समय दो एंड ट्राई द कोड। ठीक है यार, तो यही मैंने यहाँ पे कोड रख रखा है विजुअल स्टूडियो पे। तो मैं ये कोड मैं एडिटर में लिखूंगा यार। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कैसे हो रहा है, राइट। तो आप एक बार खुद से कोड करो यार, मैंने कोड दिखा भी लिया है। तो अब मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि मैं आपको एडिटर पे इस चीज़ को लिख के रन करा सकूँ आपके लिए। तो मैंने वो कोड यहाँ पे लिख लिया यार, और आप देखोगे यार कि ये एग्जैक्ट सेम कोड है जो मैंने आपको ड्राई रन में समझाया यार, एग्जैक्ट सेम कोड, ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न कि मैं कभी कभी क्या यार, लाइक मैं मोस्टली जब मैं एग्जैक्ट कोड आपको सूडो कोड में समझा देता हूँ, तो आपको फिर मैं लाइव कोड नहीं करके दिखाता, क्योंकि अगर आपको लाइव कोड करके दिखाया दिखाया होता मैंने, तो फिर लाइक 30 मिनट से यार 45 मिनट्स पहुँच जाता, ठीक है। तो हमें समझना है यार, ठीक है। दैट इज़ वाई मैं एक सूडो कोड आपको एक एग्जैक्ट सूडो कोड दे देता हूँ कि वो कैसे कैसे रन कर रहा है, एंड आई गिव यू द टाइम टू कोड योरसेल्फ, राइट। तो मैं अभी पहले कोड करके ही आता हूँ, है ना। एंड देन I try to gather all the approaches. I write it down in my notebook and then try to explain you in the most generous and the most easiest way. ठीक है, तो ये रहा अपना लास्ट पॉसिबिलिटी यार। हमने मॉड बनाया, हमने 2D एरे पाथ बनाया, राइट। पाथ को इनिशियलाइज किया, और वही हमने देखा यार कि अगर पहला जो सेल है अगर वो खुद ही जीरो है तो आंसर नहीं आ सकता है, राइट। और अगर वो वन है तो हमें ग्रिड को वन से मार्क करना होगा। ये मैंने इनलाइन इफ से मार्क कर लिया। फर्स्ट कॉलम जो मैंने आपको दिखाया था सूडो में एग्जैक्ट वही लिखा हुआ है यार। फर्स्ट रो के लिए भी मैंने एग्जैक्ट वही किया है, राइट। फिर रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग सेल्स के लिए मैंने जे इक्वल्स टू वन और जे इक्वल्स टू वन कॉलम के लिए भी इस्तेमाल किया है। और मैंने जो इंट्यूशन दी थी यार कि राइट और डाउन का प्रिविलेज हम इस्तेमाल करेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने निकाल के आपको दिखाए थे यहाँ पे, दिखाए थे आपको यहाँ पे। आई कॉमा जे के लिए राइट का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा आई कॉमा जे माइनस वन, और डाउन के रेस्पेक्ट में हो जाएगा आई माइनस वन कॉमा जे, राइट। तो हम उन दोनों उन दोनों सेल पे जो वैल्यू प्रेजेंट है, क्योंकि हम बॉटम से शुरू कर रहे थे, राइट, बॉटम से फिलिंग शुरू कर रहे थे। सो अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे पास प्रीवियस स्टेट्स के आंसर होंगे हमारे पास, राइट। तो मैंने वही प्रीवियस स्टेट्स में डाउन और राइट का प्रिविलेज उठाया, वहाँ से वैल्यू उठाया और ये एसोसिएटिव रूल लगा दी, और लास्ट के जो सेल का जो वैल्यू जो जो भी बनेगा दैट विल बी अ टोटल नंबर ऑफ वेज, राइट। लेट अस कंपाइल एंड रन, एंड आप देख पा रहे हो यार कि एग्जैक्टली इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नथिंग बट आर क्रॉस सी, और इसे एम क्रॉस एन। बाकी सारे जो लूप चल रहे हैं दैट इज पैरेलल थिंग, एंड ठीक है। तो कुछ एरर आई है यहाँ पे यार, तो उससे तुरंत से देख लेते हैं दैट व्हाट इज इट। तो यहाँ पे यार मैंने क्लास का सी मिस कर दिया है। ठीक है, सो लेट्स कंपाइल एंड रन अगेन। तो ठीक है यार, तो ये कंपाइलेशन हो गया, एंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नथिंग बट m क्रॉस n which is 10 power 6 if you multiply 10 power 3 into 10 power 3, which is definitely less than 10 power 8. So if I hit the submit button now, it would definitely get submitted, right? तो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो यार, ये सबमिट हो ही जाएगा। तो कुछ लास्ट बातें,
तो हो गया यार, ग्रेट। तो कुछ लास्ट बातें यार, कि अगर आप इस वीडियो तक अभी तक बने रहे तो यार, लाइक लिटरली मैन, कंग्रेचुलेशन टू यू। लाइक दिस dedication is required, this consistency is required if you want to like learn all the possible ways, like right। तो 3 वेज हमने डिस्कस किया, तो 3 वेज हमने 30 मिनट में डिस्कस किए विद द सूडो कोड एंड द कोड। तो इतना तो थोड़ा करना पड़ता है यार, तो इसलिए कभी कभी लाइव कोडिंग स्किप करना पड़ता है। तो 50 मिनट का वीडियो लेक्चर कौन ही देखेगा, राइट। दैट डज नॉट मेक एनी सेंस, राइट। तो आप बुक ही पढ़ लो इससे अच्छा। तो ठीक है, वीडियो को यहीं एंड करते हैं यार, एंड वी विल मीट इन द टुमारोज स्ट्रीक ऑफ डे 126। टिल देन, आपको आपको अगर फिर भी कोई डाउट है, आप कोई चाहते हो मैं सीरीज स्टार्ट करूँ, जो कि मैं ऑलरेडी डीएससी से ही स्टार्ट कर चुका हूँ, रिकर्शन जस्ट खत्म किया, इस वीक एंट्रीज भी अपलोड कर दूंगा। तो और भी कोई बात हो यार, कमेंट्स हो या कुछ भी हो, डाउट्स हो, कोई गाइडेंस हो, एनीथिंग, आप मेरे से कभी भी कनेक्ट कर सकते हो यार। इंस्टाग्राम मैंने एक बनाया पब्लिक चैनल सिर्फ आपके लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन, यू कैन पिंग मी एनी टाइम फॉर एनीथिंग रिगार्डिंग द प्रोग्रामिंग एंड योर सक्सेस एंड एल्गोरिदम, इधर बी जावा और C++। तो ठीक है, टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, बाय बाय।